देखा था कि हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखें, और उसके 3 एलिमेंट्स थे और वो ध्यान में रखेंगे तो वो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव होंगे। हमने एक बड़ी हल्की फुल्की सी एग्जांपल ली थी और वो थी कि रोटी कैसे बनाएं और उसको सिखाना हो तो कैसे होगा। पर मैंने आप लोगों को एक चैलेंज दिया था और वह मैंने कहा था कि क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए हमें एक we want to train a person to become a pilot of a fighter aircraft, तो हमारी ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो आप लोगों में से किसी ने किया होगा, आप सभी ने किया होगा। Who would like to speak up? Please go ahead. Anybody tried this? Yeah. Nobody? Sir, I actually tried, but I have left that notebook where I had written this at my mother's place. So कोई बात नहीं, जो याद आता है वो बताओ. That I can do, sure. So Yeah. what I remember was that I wrote that the objective has to train the candidates or the participants for the fleet of aircrafts that we have, and we have to imbibe the culture of Air Force, and we have to work towards inculcating the spirit of achieving the goals of Air Force. This is vaguely what I remember. I had written some 7 points, but this is something vaguely that I remember. No problem. Go ahead. Yeah. That is it, sir. Yeah. Okay. That was Amreen, isn't it? Right? Yes, Amreen. Okay. So Amreen, that's good. We have to do it, and let's go ahead and do this thing. See, what do we want that at the end of the training, the person should be able to do? Right? That was what we had written about the behavioral objective. पहला चीज क्या है कि at the end of the training, वहां पर था at the end of the training program. अब हमने प्रोग्राम शब्द हटा दिया, हमने कहा कि ट्रेनिंग का हो सकता है कि 2 साल की हो सकता है 4 साल की हो, पर whatever it is duration, but at the end of the training the person is able to now would you like to now add what you would like to say as an objective? Yeah. Sir, can I? At the end of the training, we should have a disciplined pilot who has a competency to fly a plane with the thorough safety and the measures required. Okay. Okay. Good. Competency means what? Competency in the way of knowledge of the plane, what all the things are technologically available, and a skill to drive the same. And in an attitude, this person has to be disciplined, so follow the defined guidelines. Okay. Because it's a very risky affair to fly a plane. Right. So what जो हमने देखा था ना कि क्या कहते हैं रॉबर्ट मैगर का जो वो था किस तरीके से वो लिखा, at the end of the training the participant should be able to, अगर हम ये एयरक्राफ्ट कवर करेंगे तो should be able to fly say Rafale, right? Okay. Now you said word competently. अब ये competently का क्या वो होगा? ये जो हमने सेकंड और थर्ड था उस फैक्टर में क्या लिखा था? Can you recall that? क्योंकि पहले में था परफॉर्मेंस बिहेवियर, दूसरे में क्या था? Yeah, who would like to recall? Perhaps I think it has been 2 weeks, so that may be something you may have right. So it means we need to have a little. So maybe it's skills. Yeah. The required skill to operate the aircraft.
Skill. hands-on skill, like, because first if the first Second one objective is is conditions of knowledge, performance. Conditions of performance. Second Yes. one is conditions of performance. हाँ, And okay. third one is performance criteria. परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, बिल्कुल. तो कंडीशंस ऑफ परफॉर्मेंस क्या होंगी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए? बताइए. Sir, I have found my notebook. If you allow, can I? Please, go ahead. All right, sir. Okay, sir. So by the end of the program, participants will be able to confidently carry out their mission. Yep. Participants will be trained on technical, theoretical, and simulator training for the aircraft fleet. Participants will be trained on behavioral and psychological aspects to carry out operations effectively. Participants will be trained to face life-threatening and survival skills. Participants will be facilitated to work towards getting victory. That is also. Okay, good. फाइटर एयरक्राफ्ट का या फाइटर एयरक्राफ्ट और इन पायलट का काम क्या है? काम है कि एक वॉर अगर होगा तो वॉर में दे शुड बी एबल टू कंप्लीट देयर मिशन. वो आपने वो करा. अब मिशन के कई डेफिनेशंस होते हैं. मिशन में हो सकता है कि बॉम्बिंग का मिशन है. इस मिशन में हो सकता है कि डॉग फाइट करके उधर से जो हवाई जहाज आ रहे हैं उनको रोकना और उनको मार गिराना है. राइट. कंडीशंस ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाएंगी? Is it peacetime performance or is it wartime performance? Wartime performance, sir. Wartime performance. So the conditions of performance is, in a war situation, they should be able to complete their mission. Performance criteria क्या होगा? Victory. Victory. Performance criteria will be then that having done that, he should be able to come back to his base with him safe and his aircraft also safe. Yes, sir. Is that a correct expectation? Yes, right? Now, can you see this? That whether we are talking of making a roti and training how to make a roti, or we are talking of training a pilot who is going to be the running the fighter aircraft, the three components which are written here, they are there. And these are two very extreme situations. And in fact, everything else which falls in between also has to follow these steps or these things. So when written in behavioral terms, an objective will include three components. So if you are able to write the three components clearly, you have done it. And in fact, I will tell you, this is the weakest point with most of the trainers. And this, हम लोग इस पर ही सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने क्लियर हो गए कि अचीव क्या करना है ट्रेनिंग से, तो उसके बाद आपकी जो सब्सिक्वेंट स्टेप्स हैं वो काफ़ी आसान हो जाते हैं, उनमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है. राइट. So very good. Right. Thank you. Right. So we have done something. We have learned that behavioral objective issues. Right. अच्छा, ये behavioral objective वाला जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से किताबों में नहीं दिया होता है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझें. अब let me share now a different one second. Where am I? Okay. Yeah. So,
Objective of training a pilot of the fighter aircraft are, on completion of training, the trainee will be able to fly the specific model of aircraft. इसका मतलब है कि अगर मिराज है तो मिराज पर होगा, रफाल है तो रफाल पर होगा, अगर सुखोई है तो उस पर होगा, क्योंकि ये सब मॉडल्स का बहुत डिफरेंट वो है. लोडेड विद कंप्लीट वेपनरी, क्योंकि एयरक्राफ्ट पूरी वेपनरी के साथ है, मिसाइल्स में है और बॉम्ब्स हैं, वो सब चीजें हैं. तो engage with enemy aircraft and complete the mission. So use the word very correctly, complete the mission, right? Now, in war situation, conditions of performance in war situation, and performance criteria, return say self and aircraft to the base safely without harm, right? ये हमने ट्रेनिंग देनी है. कई बार लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, हमारे जवान हैं वो सेक्रीफाइस हो जाएंगे, हम उनको ऐसे सिखाते हैं सेक्रीफाइस होना. तो मैं जब इस बारे में बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हम जवानों को सेक्रीफाइस करने के लिए ट्रेनिंग नहीं देते हैं. उधर सेक्रीफाइस तो कभी हो जाते हैं. Such a risk is already there. If I am the trainer, my job is to train them to act, fight, and stay alive, right? Like you would have seen or you would have heard about US Marine. US Marine है ना, उनको कितनी ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब कि उनका शहीद होना बहुत कम पॉसिबल है. हाँ, हो सकते हैं, हो जाते हैं, कभी एक्सीडेंट या वो हो जाता है, पर ट्रेनिंग इस लेवल तक दी जाती है कि दे विन. We are not giving the training to fight and do the sacrifice. We are giving the training for them to win. That's all, right? So you see that now the problem that we have is that is good for like a 3-year or a 4-year sort of training, but then have you ever thought of what is the type of fighter aircraft? Now I'll give you a view of how it looks when you are sitting inside a fighter aircraft. ये यहाँ पर जो है सीट पर बैठे हुए हैं आप, और ये सामने ये है, सामने आपके ऊपर कैनपी लगी हुई है, वो बंद हो जाती है, और उसके बाद आपके पास सारे कंट्रोल हैं, सारे मीटर्स हैं दिखाई पड़ रहे हैं, और अब ये सब कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है. इसको आपको चलाना है, और चला के इसको वॉर सिचुएशन में, जबकि वो 500 किलोमीटर पर आवर या कभी कभी 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, उसको चलाना है, राइट? ये आपका काम है. कॉम्प्लेक्सिटी दिख गई, राइट? अब ये बताइए कि हम कैसे करेंगे, हम क्या सोचेंगे कि हम कैसे इसमें ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे. So I guess first of all we'll try and tell everything theoretically. Yeah, theoretically, yeah, okay. फिर अगला. Then maybe we can do a mock drill or maybe aircraft visits. Yeah. So we'll explain them the functions of each and every meter and handle, the presentations and instructions. Then war simulations. Yeah, right. सिमुलेशन होंगे, पर सिमुलेशन तो बहुत आगे की चीज है. शुरुआत में क्या करोगे? और आपको पता है कि ये सब लोग कहाँ से ट्रेनिंग शुरू करते हैं? ये 12वीं क्लास पास करते हैं और ये एनडीए में जाते हैं. NDA. Right, sir. Engineering the technical facts of the plane. या तो हाँ, अब उन्होंने टेक्निकल में मेंटेनेंस उसकी नहीं करनी, उसको बनाना नहीं है, पर उन्होंने उसे उड़ाना है. पर इसकी आपको उस मशीन की आपको पूरी समझ होनी चाहिए या नहीं, राइट?
तो familiarization flights, sir, where they take the aircraft and roll around. Yeah. Okay. So to And increase the complexity, we would make it like simpler by relating it to common understandings. Right. Okay. तो common understanding शुरू कहाँ से होगी? पहले क्या सोचेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर ये बताइए। क्योंकि ये 5 दिन का काम नहीं है, ये तो कई महीने का काम है, राइट? और अभी तो पहला काम तो सिर्फ यही है कि इसे उड़ाना समझना चाहिए कि कैसे उड़ा सकते हैं। उसके बाद इशू होगा कि इसमें जो वेपन लगे हुए हैं उनको कैसे यूज करना है, राइट? फिर तो इस तरह की बहुत सी चीजें होंगी, राइट? तो अब सोचिए, आप देखते हैं ये कॉम्प्लेक्सिटी है, इस काम में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, इसीलिए इसके लिए जो आपको बताया गया था, जो अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ग्रेडेड मतलब कि मॉड्यूल्स होंगे। ग्रेडेड मॉड्यूल्स में जो हमारे मॉड्यूल होंगे वो हम बेस करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जैसा कल भी आपको बताया था, तो जो लोगों ने अजय साहू की क्लास अटेंड करी है तो आपने थोड़ा बहुत समझा होगा। मैं आपको अब थोड़ा सा और वो करूंगा, बताऊंगा। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ समथिंग, स्पेशली ऑर्गेनिज्म। ये जो वर्ड टैक्सोनॉमी है वो ज्यादातर बायोलॉजी, बॉटनी वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो ए स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट? सो यहाँ पर क्या थे? ये 6 लेवल्स थे। और रिमेंबर ना, पहला काम क्या है कि रिमेंबर। क्या रिमेंबर करना है? मीटर, सामने देखा मीटर, ये कौन सा मीटर है? हाँ मुझे पता है, ये अल्टीमीटर है। वो वाला कौन सा है? ये प्रेशर गेज है। वो वाला कौन सा है? ये फ्यूल नापता है। तो आपको रिमेंबर हो गया। फिर आप समझते हैं कि अंडरस्टैंड। अच्छा, अगर ये मीटर जो है इतना ऊपर तक चल रहा है तो मुझे लगता है कि मुझे पता चलता है कि इसमें इतने लीटर फ्यूल होगा, राइट? इतने लीटर फ्यूल है। तो अब वो वहां बैठकर क्या कहते हैं, उसके पास किताब है, कॉपी है, जिस पर बैठकर वो कैलकुलेट करेगा कि इतना अगर फ्यूल है तो मैं कितने किलोमीटर तक जा सकता हूँ। That is all to be done mentally, right? He has to have a feel of that, right? जो रिमेंबर करा, अंडरस्टैंड किया, उसके बाद अप्लाई किया और तब एनालाइज किया और फिर एवेल्युएट किया। अब ये देखिएगा कि इनका ट्रेनिंग क्या होती है। जो फाइटर एयरक्राफ्ट के पायलट्स होते हैं, इनको हर दिन, लेट मी टेल यू, एवरी डे दे हैव टू फ्लाई द एयरक्राफ्ट। Because if they are not flying the aircraft every day, how do I know that they are in the readiness to, go for war? And so what they do is, उनका एक आध दिन बीच में weekly off मिलेगा. Otherwise, they have to fly every day, right? And that is a flight for about an hour. And it is they have to be there on the duty for about 6 to 7 hours, right? And when they are in their suit, which is in the full attire, and इनको कोई ज्यादातर इनको कोई वो नहीं दिया जाता कि शेड्यूल कि आपको कितने बजे वो करना है। नहीं, वो क्या होता है कि ये बैठे हुए हैं आपने उसमें जो भी कुछ कर रहे हैं, पर क्या है, एक सायरन बजता है, and that's the signal that you have to run to your aircraft, right? You have to run to your aircraft, and the 4 aircrafts who are in that squadron have to fly one by one, and just like that अब हम ये भी देखते हैं कि आपकी रेडीनेस क्या है। जिस टाइम सायरन बजा उसके बाद इतने सेकंड में, इतने मिनट में आप you should be up in the air. So that's what it is. Every day they are sitting there. The time at which the hooter goes, the siren is blown, वो कभी पहले नहीं बताया जाता है कि भाई आपने
आप आए हो 7 बजे आए हो ड्यूटी पर और आपको अभी 2 घंटे आराम करो 9 बजे होगा। नो, 7 बजे आए हो, ये भी हो सकता है कि 7:30 बजे हो जाए, ये भी हो सकता है कि 10:55 पर हो, कभी भी होगा, because you have to be ready. Now that's every day they have to do that. So every day when they do, and when they come back, there is a whole lot of data that they have. And in that data, they have to analyze कि आज की फ्लाइट में जो जो हमने आपको चैलेंज दिए थे वो आपने ठीक करे या नहीं करे। और जब वो वापस आते हैं तो उनका जो एक सीनियर ट्रेनर होता है जो वो उनकी फ्लाइट की डेटा को लेकर उनकी फ्लाइट की सारी एवेल्युएशन करता है और एवेल्युएशन करके बताता है, फीडबैक देता है कि आप मतलब कि सही तरीके से काम कर पा रहे हैं, आपने सही तरीके से काम करा या नहीं करा, राइट। तो ये जो होता है हर दिन का काम है। डोंट थिंक दैट कि क्या कहते हैं पिछले 20 साल में अगर कोई वॉर नहीं हुआ है तो हमारे जो मतलब कि आर्मी वाले हैं, एयरफोर्स वाले हैं, वो आराम से खाली बैठे होते हैं। उनका आराम का नहीं होता, हर दिन का काम होता है। और जो आर्मी वाले हैं उनको भी रोज की ड्रिल होती है, राइट। तो ये सब ये किया जाता है, राइट। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे जो यूटिलिटी है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की वो आती है। ज्यादातर हम इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, हमारे उसमें अभी तक इतना बहुत ज्यादा फोकस नहीं हुआ है as far as Bloom's taxonomy is concerned, but I would suggest that you should really understand and apply it, because यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप ये देखिएगा कि उस मॉड्यूल का जो परफॉर्मेंस बिहेवियर होगा वो इनमें से जो भी लेवल होगा उससे मिलता जुलता होगा, राइट, उससे कनेक्ट होगा, राइट। ओके, सो या सो दैट इज द थिंग। अब इसमें आई होप I was not there for the full time, but I hope Ajay did ये अजय ने दिखाया था कल, तो ये तो मैं ज्यादा दिखाऊंगा नहीं, ये मैंने भी गूगल से वो करा है, इमेज ली है, और he also had taken। तो रिमेम्बर में क्या है, recognizing and recalling facts, understanding what the facts mean, applying the facts, rules, concepts and ideas, and breaking down information into component parts, which is at the analysis stage, and judging the value of information or ideas, and then create is the creative part. And creative part means now doing things in a different way, which might be quite different from what others have been doing, right? Machine has been made by France, but we are going to have very creative application of the machine, which is Rafale, right? Okay, so there was, this was actually the cognitive domain of, Bloom's taxonomy. Then there are affective and psychomotor, domains. Now, again, there is a lot of details there, but I wouldn't like to sort of, go into that detail. Let me look at, let me explain to you in this manner. Affective का क्या मतलब है? Affective का जो मतलब है वो ये है कि आपको कॉम्पिटेंस दे दी, आप मतलब कि एयरक्राफ्ट चला सकते हैं, पर उसके साथ साथ आपका कमिटमेंट कितना है, आपका कमिटमेंट किसके लिए, आपका कमिटमेंट कंट्री के लिए, आपका कमिटमेंट एयरफोर्स के लिए, आपका कमिटमेंट से फॉर योर स्क्वाड्रन, right? How much is the commitment? How much are you proud of this? All those things are all connected to what is called the emotions part of it, right? Then that's again very important part of it.
Why? Because let me tell you, we have won war with Pakistan, right? 1965 also, and then 71 also, Kargil also. One of the biggest asset that we have is not about our, about the equipment that we had. That we had good equipment, but more than that was the pride that our people had and the sort of, commitment that our army had. क्योंकि बढ़िया से बढ़िया मशीन दे दो उनके हाथ में, पर अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा और अगर कमिटमेंट नहीं होगा, अगर प्राइड नहीं होगा, वो लोग जीत नहीं सकते। 1965 में पाकिस्तान के पास जो एयरफोर्स के मतलब कि प्लेन्स थे, वो हमारे प्लेन से बहुत ज्यादा बढ़िया थे, but they didn't win. Why? Because our people had a better sort of, emotionally, our people had a greater pride and a commitment, and they were sure कि हम अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे हैं और हम हमारे लिए एक सही चीज है जिसके लिए लड़ रहे हैं, हम we are defending our freedom. Whereas पाकिस्तान वाले क्या थे, उनको ये सब चीजें नहीं थी और इसीलिए वो हारे, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो समझना चाहिए कि ये जो इमोशनल जो हमारी जैसे कहते हैं कैपिटल, एक तरह से मैं कहूँगा ये इमोशनल कैपिटल जो हमारी होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये वैल्यू सिस्टम से आती है। तो ये जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, ये कौन क्रिएट करता है? हमारी ट्रेनिंग में हमें ये वैल्यू सिस्टम क्रिएट करने, राइट? हमारी ट्रेनिंग से हमें ये वैल्यू सिस्टम क्रिएट करने हैं, राइट? सो नाउ आई कैन शेयर दिस पार्ट that okay, so these are again details, I'm not getting into it, how we really develop it. I would like to now go on to the third part, and third part is quite important from this point of view. Just a minute, am I? Yeah, okay, yeah, okay. Third part is very sorry. Yeah, third part is important from this point of view कि जब वो पायलट एयरक्राफ्ट चला रहा है तो उसको जो डिसीजंस लेने होते हैं वो स्प्लिट सेकंड में लेने होते हैं। वो जो स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेने होते हैं, उसके लिए जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि उसको इतनी ट्रेनिंग दी जाए कि उसके डिसीजन और उसके एक्शन, देखिए डिसीजन उसने लिया, उसके बाद एक्शन लेगा ना। एक्शन क्या लेगा? एक्शन क्या है? सामने जो बटन लगे हुए हैं या सामने जो आपके पास लीवर हैं, उनमें से कौन सा लीवर कितना चलाना है, कौन सा बटन कितना दबाना है, उसमें क्या करना है, राइट? क्या चॉइसेस हैं, ये सब है। इसके लिए टाइम कितना है? स्प्लिट सेकंड। स्प्लिट सेकंड के लिए जरूरी है कि जो आपकी रिफ्लेक्सेस हैं वो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगे डिसीजन को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो साइकोमोटर का इशू है वो क्या है? हैंड्स का इशू है। तो हैंड्स का जो इशू है उसमें पायलट को इतना बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस दी जाती है, रोज की प्रैक्टिस होती है, जिससे कि उसके रिफ्लेक्सेस दे शुड रिमेन on the top level, right? That's the thing. Is that well understood, right? Any questions at this point of time? In biology, they use a term called muscle memory, sir. Yeah, that's right. Yeah, there is a term. I guess this also involves creating that muscle memory. Yeah. वो हर अंगूठे में, हर उंगली में उसका जो काम है उसको, उसकी मसल को याद हो जाएगा कि यही करना है, याद हो जाएगा बिल्कुल, और उतना ही जोर से दबाना है जितनी जोर से बताया गया है, उससे ज्यादा जोर से नहीं बताना। और उसके लिए उसको ना
कॉन्शियस दिमाग से नहीं सोचना है, उसके सबकॉन्शियस में आ जाना है जी। ठीक है, इतना मतलब की प्रैक्टिस दी जाती है, राइट। यही चीज ये भी, इस चीज को उसमें भी देख लेना, रोटी बनानी है तब भी सब चीजें चाहिए होती हैं, राइट। ये नहीं कि उसमें नहीं चाहिए होती है, हाँ, पर उसमें उतनी सोफिस्टिकेटेड लेवल की नहीं चाहिए होती है, ठीक है, राइट। ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, ये दोनों एक्सट्रीम था, इसके बीच में कहीं पर भी आप ले जाइएगा, कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग देनी है उसमें भी यही है, कम्युनिकेशन है उसमें भी यही है, इंटरेक्शन है, लीडरशिप है, इन सब में ये सब इश्यूज आएंगे, राइट। ओके, सो I understand that most of you have got sense of it, like how to really write the objectives, right? We had so far talked about a model which was something, like ADDIE model. ADDIE model हम लोगों ने देखा था ना, analysis, design, development, implementation and evaluation. अच्छा, इसमें लग रहा था कि क्या कहते हैं, बड़ा आसान है, एक पहले कर लो, फिर दूसरा कर लो, फिर तीसरा कर लो, फिर चौथा, पांचवा। तो ये जो मॉडल था, ये इसे कहते हैं वाटरफॉल मॉडल, कि एक वाटरफॉल हो रहा है एक जगह से दूसरी, फिर दूसरी से तीसरी, तीसरी चौथी एंड ऑल दैट। ये कैस्केडिंग टाइप का मॉडल होता है, और यही मॉडल यूज किया जाता था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी। अब हम एक डिफरेंट मॉडल की बात कर रहे हैं, और वो मॉडल है SAM। SAM मॉडल जो है, उसका जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टमैटिक और सक्सेसिव approximation model, not systematic, successive approximation model. So successive approximation model is an agile instructional systems design model that has been introduced as an alternative to ADDIE that also emphasizes collaboration, efficiency and repetition. अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, जब हम लोग डेवलप करने लगे these e-learning modules, e-learning, तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता था, जब हम उससे पूछते थे कि भाई आपको कैसा चाहिए, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट बताता था, राइट। और IT का जो व्यक्ति है वो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगता था। अब वो सॉफ्टवेयर डेवलप करा और उसमें काफी उसे टाइम लगा। जब उसने वो सॉफ्टवेयर चला के दिखाया, तो उस टाइम तक जो हमारा मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, जो कि हमारा कस्टमर है, जो कि हमारा मतलब लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है, वो सोचता है नहीं नहीं, इसमें ये भी होना चाहिए, इसमें ये भी होना चाहिए, इसमें ये भी होना चाहिए। अब यहाँ पर हो जाता है, जो IT वाला है वो कहता है माय गॉड, पहले क्यों नहीं बताया। वो कहता पहले तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया, पहले मेरे दिमाग में नहीं आया। क्यों? क्योंकि मुझे ना ये बड़ी वेग सी चीज दिख रही थी, तो इसलिए मैंने वेग सी चीज थी, मैंने अपना जो कंक्रीट करके बताना था वो मैंने बता दिया। अब इसको एक और उदाहरण से लेते हैं। वो उदाहरण है कि क्या कहते हैं, आपने एक प्लॉट ले रखा है ऐसे 500 स्क्वायर मीटर का, और यू वांट टू गेट ए हाउस मेड फॉर योरसेल्फ। व्हाट विल हैपन, आप उसको बताएंगे हमें ये चाहिए, और ये सब करके किसको बताएंगे? आर्किटेक्ट को। आर्किटेक्ट उसका ब्लूप्रिंट बना देगा। अब ब्लूप्रिंट आपने देखा, अगर आपका ब्लूप्रिंट वैसा है जैसा कि पुराने जमाने में होता था, विच वाज रियली लाइक ऑन पेपर देयर इज ए डिजाइन, तो जो इंजीनियर नहीं है उसको कितना समझ आता है। वो तो वही है कि आपने मेरी रिक्वायरमेंट मान ली ना, उसने कहा हाँ आपकी सारी रिक्वायरमेंट मान ली,
सब कुछ है वो। तो उसने बनाना शुरू करा तो आप और आपके फैमिली मेंबर्स कहने लगे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ये भी होना चाहिए, अरे यहाँ पर एक कोई खिड़की नहीं दी, एंड लाइक दिस, यहाँ पर एक बाथरूम होना चाहिए था। अब यहाँ पर मुश्किल हो जाती है कि भाई काम जब शुरू हो गया उसके बाद डिजाइन स्पेसिफिकेशंस क्यों चेंज कर रहे हो? तो क्योंकि हमारा क्लाइंट जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी तरह से दे नहीं पा रहा है, इसलिए एक हमने शुरू किया और वो था कि प्रोटोटाइपिंग और सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन मॉडल। तो इसमें क्या होता है कि पहले हम कुछ रफ सा बना लेते हैं। So, going back to that example of the, house, fortunately we have got 3D software available to us, and we can really show कि virtual उसमें कि देखिए आपके हिसाब से जो बनाया था उसमें ऐसे आप जाएंगे तो ऐसे यहाँ मिलेगा, ऐसे यहाँ मिलेगा, ऐसे वो मिलेगा। अब जब आप वर्चुअल टूर कर रहे हैं अपने फ्यूचर हाउस का, तब आपको बहुत सी चीजें ध्यान आती हैं। अरे यहाँ पर कितनी लाइट होगी, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ये चीज नहीं, यहाँ पर तो हम एक टेबल रखेंगे, नहीं यहाँ हम जो बेड्स हैं वो इस तरफ को लगाएंगे। एंड सडनली देयर इज ए क्लैरिटी अबाउट योर रिक्वायरमेंट विच कीप्स एमर्जिंग, राइट। यही चीज होती है सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन मॉडल, या एक और भी इसका वो होता है, उसे रैपिड प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। वो रैपिड प्रोटोटाइपिंग में ये मतलब कि इस तरह का मेथड यूज करते हैं टू डेवलप द प्रोग्राम। व्हाट इज द प्रोग्राम? लर्निंग प्रोग्राम। व्हाट इज द आउटकम? आउटकम इज ई-लर्निंग मॉड्यूल, राइट। तो यहाँ पर एक बार हम फिर से देखते हैं, जो क्लासिक डिजाइन जो था, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का मॉडल होता था, उसमें कॉन्सेप्ट डेफिनेशन होती थी, रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन होती थी, प्रिलिमिनरी डिजाइन हो जाता था, डिटेल डिजाइन, कोड इम्प्लीमेंटेशन, टेस्ट एंड एक्सेप्टेंस एंड ग्राइपिंग, बिकॉज यू नाउ रियलाइज दैट देयर वाज समथिंग that got left out at back end, step 2, which was in fact in the requirements definition. That means client को requirement की clarity नहीं होती है, और ये बहुत बार होता है, ये बहुत बार होता है। आप बहुत बार जाते हैं ना, देखिए जब आप जाते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होता कि आप क्या खरीद कर लेकर आएंगे। आप जाते हैं, आपको एक शर्ट लेनी है तो आपको अंदाजा होता है कि मैंने 2 लेनी है, और ये आपको साइज पता है, पर वो तो वो है। पर व्हाट अबाउट sarees are a more complex an affair as far as purchasing is concerned, because you have some idea but there is so much variety and you are not even clear कि कैसी क्या कहते हैं वो चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट भी क्लियर नहीं होती है। पर हाँ, ब्रॉड जनरल रिक्वायरमेंट पता है कि हम जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। ओके, there is a marriage in the family, so I'm going to purchase a new sari, or there is a sari that I'm purchasing for giving as a gift, right? So वो पर्पस आपका क्लियर है, इसलिए है, उसके अनुसार आपका बजट भी होगा, और बजट में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। और उसके बाद जब आप जाएंगे वहां पर, आप जब देखेंगे तब आपके दिमाग में आपकी अपनी रिक्वायरमेंट कंक्रीटाइज होगी। तो ये जो बड़ा इशू है वो है कंक्रीटाइजिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये नहीं होता है, इसीलिए हम ये वाले वो यूज करते हैं, रैपिड प्रोटोटाइपिंग का करते हैं या सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन मॉडल करते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, डोंट हैव टू गो इनटू दैट। रैपिड प्रोटोटाइपिंग में वो स्पाइरल वो है कि इसमें ना आइटरेटिव है। आप एक प्रोटोटाइप बनाते हैं जो कि सिंपल सा होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, पर हाँ वो लुक एंड फील ऑफ दैट मॉडल इज एज इट विल बी इन द फाइनल वन। पर होता क्या है कि इसमें आप
perhaps you can handle 100 data. पर रियलिटी में जब आप जाएंगे तो आपको lakhs of data लेना है, तो वहां पर और यहाँ पर look and feel may be very similar, but at the back end there will be a very different type of say software structure which will be there, right? So okay, so there are these two, you know, methods of designing and designing the training that I have talked to you, apart from the behavioral and Bloom मैं एक ही में रख रहा हूँ, ये और ये successive approximation और rapid prototyping, ये मैं दो आपको, yeah, okay, questions, anything, any comments? Is it understood? Okay. और ये तो नहीं कि बिल्कुल ऊपर से निकल रहा है. No, sir, we understood the basic difference. We just need to read more about it. Okay, good, good. Thank So you. easy to follow. Huh? Easy to follow, sir. Easy to follow. Fine, good. Right. Shall we now move on to the next step? And in the next step, what I would like to do is कि हम देखिए जो डिजाइन का जो पहला मतलब कि वो था कि ऑब्जेक्टिव सेटिंग. उसके बाद हम क्या होता है कि हम टिपिकली जो हमारी आउटकम्स होती हैं वो क्या होती हैं, आउटकम हमारी जो होती है वो होती है कि वी आर एबल टू डेवलप ए प्रोग्राम प्रोफाइल. Then the second thing that we do is we have what is called a program schedule. So those aspects should be treated as an outcome of the this stage, right? और इसमें जो सबसे बड़ा चीज जो हम देखते हैं वो होता है आपका कि ऑब्जेक्टिव अगर क्लैरिटी है तो आई टिपिकली सी कि भाई ये ठीक है. अगर ऑब्जेक्टिव में क्लैरिटी नहीं है तो there is I mean you are likely to get to problem at a later stage, all right? Okay, so very quickly what I would be doing now is I would be in fact sharing with you the next step and the next step. Okay, एक मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा जो मैं डाल दूंगा आपको गूगल क्लासरूम पर, राइट? पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपको एक्सरसाइज है, दे रहा हूँ मैं. ये 1 सेकेंड. Yeah, exercise ये है. This is in class assignment. You know, a company, it's a mid-sized company. It has got 300 employees in its head office. परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ 2019-20 का, तो उसमें पता चला कि एक कॉम्पिटेंसी जो इनके यहाँ है वो है कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस कॉम्पिटेंसी. उसमें पता चला कि as many as 180 employees are at level 1, 100 are at level 2 and 20 are at level 0. What is the meaning of this? वो अभी मैं आपको टेबल दिखाता हूँ. उसमें है top management has viewed this with concern and wants to improve the competency and performance on this aspect quickly. You have been asked to design one or more training programs to solve this problem. What will be your strategy? Please provide designs outlining objectives, content and methodology, etc. So what this will be is just okay. I have to use this. इसमें क्या है, ये तो सिचुएशन हो गई. ये कॉम्पिटेंसी की बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स हैं. Are you people clear about behaviorally anchored rating scales? Right? Behaviorally anchored rating scales, those who are not knowing them, is कि हम ज़्यादातर हम जब किसी भी पैरामीटर पर रेटिंग करते हैं तो हम एक 5 पॉइंट स्केल बना लेते हैं या 4 पॉइंट स्केल बना लेते हैं. तो उसमें क्या होता है कि क्या कहते हैं
कोई जब दूसरे को रेट कर रहा है तो 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, उसमें नाम कभी और लिख देते हैं. 5 मीन्स एक्सीलेंट, एंड 4 मीन्स वेरी गुड एंड लाइक दैट. पर प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आती है वो ये आती है कि 2 लोग जो एवेल्युएटर हैं, असेसर हैं, 2 मैनेजर हैं, उनको जो एक आदमी सोचता है वेरी गुड है, दूसरा आदमी सोचता है ये एक्सीलेंट है, तीसरा आदमी सोचता है ये तो गुड ही है, ये ज्यादा वो नहीं है. तो उनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती कि व्हाट इज इट दैट द पर्सन शुड बी डूइंग दैट आई एम गोइंग टू गिव हिम दिस पर्टिकुलर रेटिंग. यहाँ पर ये रेटिंग के लिए अगर हम 0 दे रहे हैं या 1 दे रहे हैं, लेवल 2 या 3 दे रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है. तो क्या है, ये बिहेवियर हैज बीन डिस्क्राइब्ड हियर एंड इसको कहते हैं बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल. रेटिंग स्केल तो है ना ये 0, 1, 2, 3, राइट. एंकरिंग क्या है, उसके सामने दिया हुआ है ये बिहेवियर. अगर आप देखते हैं कि ये वाला बिहेवियर वो कर रहा है तो आप उसको वो कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल देंगे. फॉर एग्जाम्पल लेवल 0 में जहां आ रहा है स्पीक्स इनकोहेरेंटली एंड लाउडली, डज नॉट अलाउ द अदर पर्सन टू टॉक, कीप्स जनरली क्वाइट एंड डज नॉट इनिशिएट द टॉक, रिलेट्स टू अदर्स ओनली ऑन टास्क, ये 0 है. 0 is something, which is not acceptable. It is not good. And we don't want people of that type. But level 1 पर क्या है? Speaks clearly with firm voice, presents the information systematically, listens attentively, asks clear questions, has cordial relations with colleagues, superiors and juniors. तो आप देख रहे हैं कि level 0 is unacceptable, level 1 is like good, अच्छा है, ऐसा होना चाहिए. पर is it enough? No, it is not enough, because what you see is in level 2 is certainly an improvement on level 1. Level 2 में क्या है? Engages in a two-way communication, welcomes feedback, listens with a problem-solving attitude. तो वहाँ listening attentively था, यहाँ पर with a problem-solving attitude. Has warm and trusting relations with others. अभी तक ये जो वार्म और ट्रस्टिंग ये वाली चीजें नहीं आ रही थी, क्योंकि ये क्या है, इमोशनल एस्पेक्ट्स है. तो यहाँ पर कुछ चेंज हुआ. लेवल 2 इज सर्टेनली सीम्स टू बी बेटर देन लेवल 1. लेवल 3 में क्या है? मॉड्यूलेट्स द वॉइस, कैन चेंज स्टाइल अकॉर्डिंग टू नीड एंड पर्सन, सेंसिटिव टू नॉन वर्बल क्लूज. ये एक नया डायमेंशन आ गया. sees others point of view, listens with empathy. अरे ये और भी ज्यादा वो हो गया. पहले तो सिर्फ वार्म रिलेशनशिप थी, अब एम्पैथी भी हो गई शुरू. एंड इज एबल टू डिस्प्ले कंसर्न. अरे अच्छा, सिर्फ समझता ही नहीं है दूसरे की कहाँ दर्द हो रहा है, पर अगर कंसर्न शो करना है तो वो भी अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकता है. ये तो काफी डिफरेंट हो गया लेवल 2 से. मेक्स हाई इम्पैक्ट प्रेजेंटेशन, has a knack of relating and establishing rapport with strangers, relates excellently with colleagues for long lasting relationships. अब सवाल क्या होगा कि जो लेवल 2 वाला है उसको लेवल 3 पर कैसे लेकर आए. और अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि आपने ऐसी ट्रेनिंग करनी है कि जो लेवल 2 की कॉम्पिटेंस वाला व्यक्ति है उसमें लेवल 3 की कॉम्पिटेंस दे दी जाए, तो अब आप ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे. ठीक है, तो आई विल शेयर दिस ऑन द गूगल क्लासरूम और आप लोग इसको करिएगा एज ए होमवर्क एंड करके लाइए. राइट, ओके, गुड, very good. Bhumi has written sort of clearly defined rubrics. Yes, that's the type of thing that we have in behaviorally anchored rating skills, right? Okay, so that becomes a your homework. Okay, now I move on to okay. I would now give you an exercise, and in fact we will be
we will be looking at this. This is a sort of, a question which has come in one of the papers on this instructional design, right? So, yeah. So this is the your you are in a car company, right? मारुति है, Hyundai है. तो आजकल आप देख रहे होंगे कि क्या कहते हैं, कितनी एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, कितने नए मतलब कि कार के मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं, क्योंकि सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां दे हैव गॉन थ्रू अ बैड फेज, दे बिकॉज कार्स वर नॉट सेलिंग, people don't buy the same type of car, and particularly like what's happening is जो हमारा पेंडेमिक एनवायरनमेंट है, इसके कारण लोगों का काफी चेंज हो गया है दिमाग, और सोच रहे हैं कि कैसे. एक तरफ ये है कि कार जो एग्जिस्टिंग कार्स हैं उनका यूटिलाइजेशन कम है, बिकॉज पीपल आर नॉट गोइंग आउट, बट मेनी पीपल हु वर नॉट हैविंग कार are also now trying to buy a car, क्योंकि जिस दिन उनको ऑफिस जाना होता है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं लेंगे, वो अपने गाड़ी में जाना चाहेंगे for their own safety. So what has happened that this particular car company has launched a new car model, and it is heavily advertising now in the festive season, जो हमारा दशहरा दिवाली का सीजन होता है, जो कि आजकल चल रहा है उसमें, right? You are a learning and development manager in this, and you have been told to develop some training. For whom? You say that the target audience is existing to 2,500 workshop mechanics who are qualified and have been servicing and maintaining existing car models. ये नया कार मॉडल है, पहले वाले कार मॉडल्स को ये लोग कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, पर इनको नई कार मॉडल पर भी ट्रेनिंग देनी है, so that when the requirement comes, they are able to really handle that type of training. ठीक है, that type of task. So उनको ट्रेनिंग दी हुई है, so they are able to handle that type of task. Means they should be able to service, and they should also be able to repair that new car model. अब ये जो 2,500 workshop mechanics हैं, as you would appreciate, they are scattered all over India, right? तो all over India का है, और अब आपका काम है write out the various steps that you will take in developing and launching the training program all over India, right? कैसा लग रहा है? अच्छा चैलेंज है या नहीं? Good one, sir. रियलिस्टिक है? Yes, sir. इससे ज्यादा कोई नहीं बोलने वाला, आपको बताने वाला. अगर आप L&D मैनेजर हैं ना मारुति में, वो बता देंगे कि ये नया कार मॉडल है, भाई अपना आप भी कुछ बनाकर वो करो और सबको ट्रेनिंग दे दो. अब L&D मैनेजर की तरह आपको प्लान बनानी पड़ेगी, डिजाइन करना पड़ेगा, और ये सब करके आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. और इन कंसल्टेशन विद the production people, in consultation with the sales people, sales marketing, और इससे दोनों से connect होगा, right? So how would you go ahead? Sir, first of all, we'll have to find out that what all the differentiators we have in existing car model as well as the new one in a way of make, and how the engine or the substitute parts are different from existing model. By knowing that, we will try to list out the differentiators, because existing training is already given to the workshop mechanics. So only the differentiator training will have to provide. There will be list of I think 10 or 15% things out of 100 where we'll have to train them actually.
So Okay. we'll have to plan for the 100%. We'll have to part from only this 10-15%, the differentiator we have, and accordingly we'll have to plan for our training objective. बिल्कुल बढ़िया, बढ़िया बात है. और बताइए, और क्या क्या आपके दिमाग में और क्या क्या एस्पेक्ट्स आ रहे हैं? आपने इस टाइम पर बहुत से सवाल भी पूछने हैं लोगों से, Right. So उनसे, अपने कुलीग से. तो आप yes. वो क्या सवाल हैं जो पूछेंगे? You are the L&D manager, but you will ask clear questions, or you need some clear information. क्या क्या information? Sales department to know the kind of the numbers they are going to sell in coming future. So the kind of numbers we will be getting for the maintenance and service. So by through we will able to know that what number of mechanic per area basis will have to train and to be ready for this for a specified time for the maintenance. Acha, okay, that's very good. That means you are not going to give training to all the 2,500 straight away. Is No, that so? sir. No, sir. Okay. So you'll save some money on that. Okay, money as well as the resource, and will able to specialize some people in a short batch, and will train the rest of the people in the coming time. Okay. Okay. Very good. That means you are thinking of rolling out this training in a phased manner. Yes, sir. Right? ये phasing के लिए आपको किस तरह की और information चाहिए? First of all, कितना numbers हमारा we are going to sell, और उसका हमारा turn around time क्या होने वाला है, state wise and city wise जितनी हमें कारें मिलने वाली हैं. Then we will segregate into the number of cars, or the perceived number, or the kind of friction we have that we will get as for the maintenance for every day or per month basis. For that, the kind of number of individuals will be ready for the maintenance and for this repairs. Pawan, आप कौन सी उसमें काम करते हो? At present, sir, I am heading Bisleri as a regional HR head. अच्छा, तब ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कहीं आप खुद ही किसी कार कंपनी में हो तो आपको ये सब आइडिया. Yeah, I've been to Aditya Birla and Reliance earlier. Okay. So I have this kind of projects, but that was a different sector actually. Yeah. I think it's a very practical approach that you have really used, because when I give this challenge to the MBA students, तो वो तो सोचते हैं कि सारे 2500 को करना है और कितने टाइम में 6 महीने में करना है. पर you have really said कि इतनी तो जरूरत ही नहीं होगी, मार्केट में ही इतनी जरूरत नहीं होगी. मार्केट में जब हमारी सेल होगी उसके अकॉर्डिंगली सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी. सर्विस की रिक्वायरमेंट भी हर जगह नहीं होगी और हर आदमी को ट्रेन नहीं करना. कुछ लोगों को ट्रेन करते हैं. When the number of cars which are sold of this model are very high in our population of the car in a city, तब हमें देखना पड़ेगा कि भाई ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देनी है. Okay. Right. So that's what we could do. We could identify some key performers, and we could convert them by to train the trainer to a trainer workshop wise, and by through it they will be more mature training to the workshop on a weekly. So what you are saying is centralized जो आपकी तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी वो selected लोगों को दी जाएगी, और बाकी लोगों को वो वहाँ पर जो एक जैसे होता है ना मास्टर मैकेनिक, वो उनको दे देगा. अब पर इसमें आप कंटेंट डेवलपमेंट क्या करोगे ये बताओ. Content development, first of all, sir, we'll have to list out जो मैंने पहले भी बोला था, the differentiator we have and the kind of troubleshooting they are going to get in different engine, the kind of shortfalls we have in the new engine, and the shortfall into the new body part of the car. So these all the things we will come to know by through the production guys and the maintenance guy who know that kind of chassis and engine they are using. तो आपके ये जो प्रोडक्शन गाइज हैं, मेंटेनेंस गाइज हैं, ये जाएंगे वहां पर और ट्रेनिंग देंगे? इनसे सर इनपुट लेंगे. फिर and then we will try to find somebody from the same maintenance engineering background who will be training them on the floor. On the floor. अच्छा, तो ये क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं देनी है आपने? Sir, that will again depends.
If the knowledge part is more that we are going to replace a Centro engine from a Kia engine, so that has to be a classroom training. If that knowledge part is only difference between Sonnet and Seltos, then we need not to go for a classroom, and a maintenance workshop training is sufficient for them. हाँ, तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मॉडल नया है पर जो इंजन है वो वही वाला है जो पुराना है। हाँ, वो तो उसमें कई बार इंजन पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं होती, उन्हें पता है कि क्या कहते हैं, और जो सर्विसिंग है वो ज्यादा इंजन की ही होती है। राइट सर, राइट, तो उसमें ज्यादा देने के तो बहुत बढ़िया वो वाला एस्पेक्ट आता है। राइट, सो यहाँ पर फिर भी वो नहीं हुआ, आप फिर भी यही उसके अलावा कुछ तरह की कंटेंट बनाना चाहेंगे? एक बार ट्रेनिंग दे दी, वो आदमी गया, उसने बता दिया, कितने घंटे की ट्रेनिंग हो सकता है होगी इसके लिए? सर if I may, सर if I may, yeah, Ravi. Sir, first of all, this is a big number, 2,500. So to bring out the homogenization of the group, what I'll require the qualification of the trainees. Number one. Number two, the experience, the year of experience they are having. But do you not agree with Pawan कि पवन ने कहा मैं 2,500 को नहीं दूंगा, मैं उसमें से select करके दूं? That is one approach. Let's say if I want to go in one go for the pan India training, and then I'll definitely ask for the budget. What is the budget of the training program that the client is looking for? Who is your client? The company who has asked me to design the training program. You are L&D manager of that company. Fine, so that goes away, and then I will ask for. Then I'll design. No, it doesn't go away. Sorry, it doesn't go away. That has to be taken in-house. I mean to say, in-house resource has to be calculated. पर in-house में भी आपको कहीं तो budget approval चाहिए होगी. Absolutely. That is the point I want to make, sir. तो budget कितना होगा, कैसे होगा? वो हम लोग को देखना होगा, and then the transfer of learning, what is the output, the impact that we are looking for. So that the one thing that you discussed in the previous slide about the training objective. So how the training objective will be met, what would be the measurement criteria with which we come to know that the training has actually taken place impactfully. So these are few points that I can suggest, sir. Okay, so for example, you are saying transfer of learning, right? आपने मतलब कि ट्रेनिंग दी 5 लोगों को, और वो या मान लो 20 लोगों को दी विशाखापट्टनम में, और आप पूछ रहे हैं कि भाई ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या था। आपको अगले 6 महीने में पता चला कि विशाखापट्टनम में तो मतलब कि मुश्किल से 40 ये गाड़ियां बिकी हैं इसकी, तो वो 40 आती हैं, 1-2 जगह आती हैं, आपने 20 लोगों को दिया था, उनमें से बहुत से लोगों को तो ये काम ही नहीं मिला, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैसे मालूम करेंगे? So transfer of learning check करने के लिए we'll have to see that the desired outcome that we are looking for, that the company is shifting from one model to another, is the employee, the mechanics, are they just a minute. Company is not shifting from one model to another. Upgrading. Company is adding one more model. Yes. तो ना मारुति के वो सारी चलती रहेंगी, एक नया अभी लॉन्च किया वो भी चलेगा, right? So they are not shifting to a new model, they are only adding a new model, right? Yes. So what is the new technology that we are actually imparting upon the input that we are giving? What will be the measurement criteria? How will we come to know that the particular employee, the mechanic, has learned what we have taught them? For example, what for that, Ravi, you will have to create certain tests. Absolutely. So you will create certain tests, and after the completion of the training, that test will decide and give you a picture that how much you are able to inbuilt into them, the new thing you were able to inbuilt in them. Absolutely, sir. I agree with you. Assessments kind of the FA and SA will create, sir. Right. So now, so this becomes a second sort of, exercise for you to really think through and come up with a development and launch plan as an L&D manager. Are you the one who is going to develop the content?
Yes, no? The content will be decided by the technical person who knows the car engine and the body part in a well way. Right, right. So So one more aspect which we need to taking care of when we are yes. designing and developing and launching the training program, that yes, everything has to be taken care of, that 25 people in one go we cannot train, but we need to talk to the production manager as well as sales and marketing manager. If we are launching a model, maybe considering the months, for example, if we are launching the model in the month of Diwali, say per se, so at that point of time we will also consider that in which areas there are more chances to be cards sold. So according to that we need to train the people and how many people are indulged and involved, so that the maximum profit which the organization obviously has, for which the training has to be given in taken into consideration. So there are so many aspects while designing the training, and various questions which we need to ask to the sales and marketing people as well as the production managers, so that we can give the best maximum output to the through the training to the people. Right. So good, Manali. I think you have a very good this thing. आपकी जो ट्रेनिंग का है, जो शेड्यूलिंग है, उसका अलाइनमेंट सेल्स से होगा, क्योंकि जहां सेल्स ज्यादा होगी वहां आप ऐसे लोग ज्यादा तैयार करोगे जो कि उसके सर्विस कर सके. तो अगर पता है कि एक चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा सेल हो रही है, तो आप देखोगे कि वहां पर ट्रेनिंग देनी है ज्यादा लोगों को. ठीक है. तो ये भी बहुत बढ़िया एस्पेक्ट्स है. So you see that in real life we have this, that we have to do जो एक्चुअल डेवलपमेंट का वर्क है वो तो बाद में आएगा, पर अभी जो है डेवलपमेंट के लिए एक प्लान करना कि कैसे हम ट्रेनिंग को मतलब कि कैसे हम ट्रेनिंग के लिए प्लान करेंगे. और obviously those issues are always there which we have talked earlier. We have to understand what is the training objective, right? उसमें वो सारी चीजें आ जाएंगी जो पहले हमने बताया है, वो अलग इशू है. पर उसके बाद अगर हमें पता चल गया, हमने वहां पर कंक्रीटाइज कर लिया, ट्रेनिंग डिजाइन कंक्रीटाइज कर लिया, तो उसका डेवलपमेंट के लिए और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें एक ब्रॉड प्लान बनानी होगी. और वो जो ब्रॉड प्लान बनानी होती है वो काफी कुछ चीजों से अलाइन करनी पड़ती है. एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीजें बहुत अलाइन करके चलना पड़ता है, प्रोडक्शन से, सेल्स से, ये सब से अलाइन करके चलना पड़ता है. और एक इशू जो जिसमें अभी हम ने बात करी पर फिर उसमें बहुत ज्यादा नहीं सोचा, वो था बजट का. अब ये सब करने लगोगे तो उसके बाद आप बताओगे कि भाई हमारा बजट ये है. बजट में क्या होगा कि यू आर L&D मैनेजर बट यू डोंट हैव ऑल द बजट. यू विल हैव टू गेट, क्योंकि जब आप वो खर्चा करोगे तो जो फाइनेंस वाला है वो पूछेगा बजट कहाँ पर है, बजट अप्रूव कराया था, किससे करवाया था, ये बजट सेल्स के बजट से निकलेगा या आपके HRD के बजट से निकलेगा. और ऑब्वियसली वहां पर डिबेट होगी. और कई बार होता है कि क्या कहते हैं, L&D मैनेजर कहता है कि मेरा बजट जो है, जो शुरू में अप्रूव हुआ था, उसको मैं नहीं टच करता हूं, मैं ये जो सेल्स का बजट है, मार्केटिंग का बजट है, उससे निकालता हूं. राइट. तो वो सब इशू हैं जो डिपार्टमेंट, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के इश्यूज आ जाते हैं. होता है, जो लोग काम कर रहे हैं वो जानते हैं कि कैसे कैसे ये सब झगड़ेबाजी होती है. राइट. ओके. राइट. So we are at 5:30. Two things I am going to, okay, these 2-3 things I am going to put up on the Google Classroom, and anything at the end of the session, any questions, any say suggestions, any comments, anything? No? थक गए हो? अच्छा, चलो कोई बात नहीं. We'll meet. Let's see.
whether I meet you next week or next to next week, because I have to schedule other classes also for other courses. And in fact, I have a little shortage of, the slots. हमारे पास 11 पेपर्स हैं और 11 पेपर्स में से अभी मैंने इस हफ्ते में 7 पेपर्स का शेड्यूल करा था, और हमारे पास स्लॉट्स जो हैं वो 4 और 4 8 और 1 9 हमारे पास स्लॉट्स होते हैं सैटरडे संडे में। आपने देखा होगा कि 10 बजे वाला है, एक 12 बजे और 2 बजे और 4 बजे, ये 4 हो गए। और